how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is page formatting in MS Word 2016. Let's get started. Vaibhav made a flyer. Ritika made some changes to it. Find out 5 differences between the two and circle them. Book fair, great books for children. Join us on the 10 to 12 of April. 2 p.m. to 6 p.m. ABC Public School. All are welcome. See you there. Book fair, great books for children. Join us on the 10 to 12th of April. ABC Public School. All are welcome. 2 p.m. to 6 p.m. See you there. Ritika's flyer. तो बच्चों यहाँ पे आपको 2 फ्लायर्स दिख रहे हैं, ठीक है. एक है वैभव का फ्लायर और एक है ऋतिका का फ्लायर. एक्चुअली वो वैभव का ही फ्लायर है, उसने बुक फेयर के लिए एक फ्लायर बनाया था ताकि लोगों को इनवाइट किया जा सके. लेकिन आप देख पा रहे हो ये जो फ्लायर है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा. ऋतिका ने इसमें थोड़े से चेंज किए, इसको मॉडिफाई किया और इसको अट्रैक्टिव बना दिया. Formatting means changing and arranging text in a document to make it attractive. In Word, the formatting of text and the page can give your document a professional look. The way you format your text in a document depends on how you intend to use it and how you want it to look like. Features like adding a header and footer, inserting page breaks, creating columns, etc. are really useful when creating a professional document. Let us know about these features in detail. बच्चों, जब आप फॉर्मेटिंग करते हो और आप टेक्स्ट को अरेंज करते हो तो उससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि सिंपल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो पढ़ने में तो आते हैं लेकिन वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते. तो आप फॉर्मेटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं, उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उन्हें रीसाइज कर सकते हैं और उसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. Adding a header and footer in a document. Header and footer options are used to place some information on top and bottom of every page respectively. Headers and footers generally contain page number, file name, title of the document, the author's name, the current date and so on. A header is the text that appears at the top of every page in a document. On the other hand, a footer is the text that appears at the bottom of every page in a document. To insert header and footer, follow the given steps. Step 1. Click on the Insert tab. Step 2. In the header and footer group, click on the header button. The headers gallery appears. Step 3. Click on a header design that you want. The header place holder will appear at the top of every page in your document. Step 4. Click in the placeholder and type out the header text to create a header. Step 5. Click on the Close Header and Footer button in the Header and Footer Tools Design tab to come out header mode. Similarly, to add a footer in your document, click on the footer button in the header and footer group. When the footer gallery appears, repeat the steps from 3 to 5 to insert footer. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर्स को ऐड करते हैं. हेडर एंड फुटर्स जो होते हैं वो ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हमें किसी भी पेज की इन्फॉर्मेशन को दर्शाते हैं, ठीक है. ये हेड में मतलब टॉप में एंड बॉटम में हमें उस पेज की इन्फॉर्मेशन को रिस्पेक्टिवली दर्शाते हैं. हेडर एंड फुटर्स जो होते हैं ये आपके पेज नंबर कंटेन करते हैं, फाइल नेम, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑथर्स नेम एंड करंट डेट एंड सो ऑन को ये हमें डिस्प्ले करते हैं. एक हेडर जो होता है वो अपीयर होता है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी जो डॉक्यूमेंट होती है उसके टॉप पे ये हमें अपीयर होता है. ऑन द अदर साइड जो फुटर्स होते हैं वो बॉटम पे होते हैं, ठीक है. किसी भी पेज पे सपोज नंबर हमें या ऑथर का नेम जो है हमें देखना है तो हम कहाँ पे दर्शाते हैं, उसे डाउन नीचे की तरफ दर्शाते हैं. अब यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है हेडर एंड फुटर्स को, तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. तो चलिए बच्चों देखते हैं कौन कौन से वो स्टेप्स हैं. सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होता है. उसके बाद हम क्लिक करेंगे हेडर एंड फुटर ग्रुप्स पे. उसके बाद हम हेडर बटन पे क्लिक करेंगे. देन हमारे सामने जो है हेडर गैलरी जो है वो क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी. उसके बाद हम हेडर डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे जो भी हम चाहते हैं, ठीक है. हम हेडर जो प्लेस होल्डर होता है उसे अपीयर करेंगे एट द टॉप ऑफ एवरी पेज इन आवर डॉक्यूमेंट,
ठीक है। उसके बाद हम उस प्लेस होल्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम हेडर टेक्स्ट को टाइप करेंगे, जो भी हम हेडिंग जो है अपने पेज पे डालना चाहते हैं। उसके बाद हम क्लोज करेंगे हेडर एंड फुटर बटन को इन द हेडर एंड फुटर टूल डिज़ाइन, ठीक है। और जो हमारा हेडर मोड है वो हमारे डॉक्यूमेंट पे क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको फुटर को अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड करना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा फुटर बटन पे इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप। उसके बाद जो फुटर गैलरी है आपके सामने अपीयर हो जाएगी और आपको 3 से लेकर 5 तक जितने भी स्टेप्स दिए गए थे ऊपर, वो आपको क्या करने हैं, रिपीट करने हैं। थिंक बॉक्स सजेस्ट अ हेडर एंड फुटर फॉर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन द सोलर सिस्टम। बच्चों, आपको एक सोलर सिस्टम पे एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको उसका हेडर एंड फुटर जो है वो खुद से सजेस्ट करना है। नाउ पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग इज द अरेंजमेंट टेक्स्ट एंड ऑल एलिमेंट्स ऑन अ पेज so that it looks appealing to the reader. The page formatting options are available in the Layout tab in Word 2016. There are many page formatting tools. Let us learn about them. Setting margin. The blank white space left between the text and the edge of the page on all sides is called page margin. Word allows to set the margin on all the 4 sides of a document, i.e. top, bottom, left and right. The default margins are set at 1 from the top and bottom and 1 from the left and right edge of the page. Follow the steps given below to set the page margin. Step 1. Click on the Layout tab. Step 2. In the Page Setup group, click on the Margins button. From the list that appears, select any predefined margin settings. The margins of the page will be changed. If you want to set margins yourself, click the Customs Margins button. The Page Setup dialog box will appear. Select the Margins tab. Type the values for top, bottom, left and right margins or click the spin boxes to set the margins. In the Apply to drop down list, choose any option and click OK. तो बच्चों, हम जान लेते हैं कैसे हम मार्जिन्स को सेट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मार्जिन्स क्या होते हैं। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो लेफ्ट, बॉटम एंड राइट, लेफ्ट पे आपके क्या होते हैं, कुछ मार्जिन्स छूटे हुए होते हैं, ठीक है। वो आपको कुछ वाइट स्पेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपका जो राइटिंग है वो आपके पेज से बाहर ना जाए। अब कैसे आप मार्जिन्स को सेट कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो मार्जिन्स होते हैं वो एक पे सेट होते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, राइट एंड लेफ्ट की तरफ भी। सबसे पहले आपको लेआउट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आप पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन द मार्जिन बटन, ठीक है। फिर आप जो लिस्ट आपके सामने अपीयर होगी उसमें से आप कोई भी प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग्स को क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मार्जिन ऑफ द पेज है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो भी आपने उसमें डिफाइन किया होगा उसी हिसाब से जो आपका पेज है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने मार्जिन्स को खुद से चेंज करना चाहते हो तो आप क्लिक करेंगे कस्टम्स मार्जिन बटन पे, ठीक है। आपके सामने पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप मार्जिन्स टैब पे सेलेक्ट करेंगे और आप वहाँ पे वैल्यू को टाइप करेंगे, ठीक है। बॉटम के लिए, टॉप के लिए, राइट एंड लेफ्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज़ आपको वहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। फिर आप अप्लाई करेंगे इन द अप्लाई टू ड्रॉप डाउन लिस्ट और उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। Setting margins using rulers. To change the left or right margin, point to a margin boundary on the horizontal ruler. When the pointer changes to a double header arrow, drag the margin boundary as per your need. To change the top or bottom margins, point to the margin boundary on the vertical ruler. When the pointer changes to a double head arrow, ड्रैग द मार्जिन बाउंड्री एज रिक्वायर्ड। अब बच्चों, आप जब डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हो तो आप देखते हो आपके हॉरिजेंटली और आपके वर्टिकली आपको कुछ रूलर, स्केल जैसा कुछ नज़र आता है, ठीक है। इस स्केल के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इस रूलर के थ्रू भी आप मार्जिन्स को ऐड कर सकते हैं लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम पे, ठीक है। सबसे पहले आप हॉरिजेंटल एरो पे जाएंगे, रूलर्स पे जाएंगे, उसके बाद आप डबल हेडेड एरो जो आपके सामने अपीयर होगा आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आप उस मार्जिन को ड्रैग करके लेके जाएंगे जितनी भी बाउंड्री आपको चाहिए अपने डॉक्यूमेंट की, ठीक है। वर्टिकली भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकली भी अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन्स को चेंज करना है टॉप एंड बॉटम के, तो आप सिंपली ऐसे एरो आपके पास आ रहा होगा वर्टिकली, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ड्रैग करके अपने मार्जिन बाउंड्री को
क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं. Do you know the gutter margins is the space between the edges of two facing pages of a document to allow for their joining when the pages are bound together in the form of a book or spiral. बच्चों क्या आपको पता है गटर मार्जिन्स जो होते हैं वो स्पेस कहलाते हैं आपके टू फेसिंग पेज के एज का, ठीक है, और इन्हें आप अलाउ कर सकते हैं फॉर देयर ज्वाइनिंग जब भी आप पेजेस को क्या करते हैं, एक साथ बाउंड करते हैं. Setting page orientation. Orientation of a page means the direction in which the text appears on a page. Word has two types of page orientation: portrait orientation, landscape orientation. The default orientation is portrait, where the vertical length of the page is more its horizontal length. In landscape orientation, the horizontal length of the page is more than its vertical length. To change page orientation, follow the given steps. Step 1. Click on Layout tab. Select Orientation command in Page Setup group. Step 2. Choose Portrait or Landscape from the drop down menu. बच्चों आप अपने पेज के ओरिएंटेशन को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है. सपोज आपको अगर उसे पोर्ट्रेट मोड में दिखाना है तो आप पोर्ट्रेट में दिखा सकते हो, अगर आप उसको लैंडस्केप में दिखाना चाहते हो तो आप लैंडस्केप में दिखा सकते हो. आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं अपने पेज ओरिएंटेशन के, कौन कौन से, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ठीक है. जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पेज का ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट मोड पे ही होता है, ठीक है. जो लंबा सा आप देखते हो वैसे में आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हो, टाइप करते हो. अगर आप इसे लैंडस्केप में करना चाहते हो तो आप इसे लैंडस्केप में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. उसके लिए आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा. फिर उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे ओरिएंटेशन कमांड को इन पेज सेटअप ग्रुप, ठीक है. उस पर आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को चूज कर सकते हैं फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. Setting paper size. Paper size is the actual length and width of the paper in centimeter. You need different paper sizes for different types of documents. To change the paper size, follow the given steps. Step 1. Click on Layout tab. Step 2. Click on Size command in Page Setup group. Step 3. Select a paper size you want for your document. The standard paper size is A4. अब आप अपने पेपर के साइज़ को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है. डिफरेंट पेपर साइजेस जो होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं आपकी स्क्रीन पे. आप इनके साइज़ को फॉलोइंग स्टेप्स के साथ क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं देख लेते हैं बच्चों. सबसे पहले आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे. उसके बाद आप साइज़ कमांड पे क्लिक करेंगे इन पेज सेटअप ग्रुप. उसके बाद आप अपने पेपर के साइज़ को सेलेक्ट करेंगे जो भी आप चाहते हैं, ठीक है. जो स्टैंडर्ड पेपर साइज़ है वो A4 ही माना जाता है. Inserting a page break. A page break is that place in a document where one page ends and the next one begins. While typing a document, a page break gets inserted automatically when a fixed number of lines have been typed. However, many times you need to force a page break to suit your requirement. Page breaks move the text to a new page before reaching the end of a page. To insert a page break in your document, follow the given steps. Step 1. Click where you want to insert the page break. Step 2. Click on Layout tab. Step 3. Click on Page Breaks command in Page Setup group. Step 4. Select the option Page. A page break will be inserted in your document. तो जो पेज ब्रेक के बारे में जान लेते हैं. पेज ब्रेक एक ऐसा प्लेस होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में जहाँ से आपका एक पेज एंड होता है और दूसरा जो पेज है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. जब आप किसी डॉक्यूमेंट को टाइप करते हो तो आपका पेज ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है. क्योंकि जब आपका पूरा पेज फिल हो जाता है और आपको नेक्स्ट पेज पे जाना होता है तो नेक्स्ट पेज जो है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है. तो बच्चों सपोज आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के बीच में पेज ब्रेक को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं. सबसे पहले आपको क्लिक करना है उस जगह पे जहाँ पे आप पेज ब्रेक को इंसर्ट करना चाहते हैं. उसके बाद आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे. देन आप पेज ब्रेक कमांड पे क्लिक करेंगे इन पेज सेटअप ग्रुप, ठीक है. उसके बाद आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे पेज. जो पेज ब्रेक है वो अपीयर हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट पे. टेक टिप. यूज Ctrl+Enter टू एंटर अ ब्लैंक पेज, ठीक है. नोट. टू हाइड द वाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द पेज ब्रेक, डबल क्लिक ऑन द पेज ब्रेक लाइन. द पेजेस विल
appear to be separated by a thick black line। तो बच्चों अगर आप वाइट स्पेस को हाइड करना चाहते हैं किसी भी पेज ब्रेक के बिफोर या आफ्टर, तो आपको उस लाइन पे, उस ब्रेक लाइन पे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो जो पेजेस है वो सेपरेट लाइन में अपीयर हो जाएंगे बाय अ थिक ब्लैक लाइन। एडिंग अ पेज बॉर्डर। A border is an outline surrounding some particular area or a text. A border helps to draw the reader's attention to the area around which it is added. In Word, one can apply a border to a selected text, paragraph, or even to the entire page. The steps to do so are given on next page. Step 1. Open the required document. Click on the Page Borders button in the Page Background group of the Design tab. Step 2. Click to select a setting for your border from under the setting section. Step 3. Select a line style for your border from the style section. Step 4. Select a line color and width for the border from the color and width sections palette. Step 5. To apply an artistic border, select a border design from the art drop down list. Step 6. Select whether you want to apply the border to all the pages of the document or to a single page, and so on from the apply to drop down list. Step 7. Click on the OK button. The page border will be set as specified. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम अपने बॉर्डर पेज में बॉर्डर जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, बॉर्डर जो होता है एक आउटलाइन माना जाता है जो कि हमारे टेक्स्ट में या हमारे डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द होता है। ये जो बॉर्डर होता है ये हेल्प करता है किसी भी रीडर के अटेंशन को। ठीक है, मतलब उस बॉर्डर के अंदर जो भी एरिया है वो आपको पढ़ना जो होता है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे हम कैसे बॉर्डर जो है ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जहाँ पे आप बैकग्राउंड जो है या जो उसका बॉर्डर है वो आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन द पेज बॉर्डर बटन इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप ऑफ द डिज़ाइन टैब। उसके बाद आप क्लिक करेंगे टू सेलेक्ट अ सेटिंग फॉर योर बॉर्डर, किसमें से, अंडर द सेटिंग सेक्शन में से। उसके बाद आप लाइन स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम योर बॉर्डर फ्रॉम द स्टाइल सेक्शन। उसके बाद आप लाइन कलर को सेलेक्ट करेंगे और आप अपने बॉर्डर की जो विड्थ होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम कलर एंड विड्थ सेक्शन पैलेट। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे एन आर्टिस्टिक बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर डिज़ाइन को आप सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द आर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। देन आप सेलेक्ट करेंगे वेदर यू वांट टू अप्लाई द बॉर्डर टू ऑल द पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और टू अ सिंगल पेज। ठीक है, अगर आपको एक ही पेज पे चाहिए तो आप एक ही पेज पे उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बाकी सारे पेजेस में भी उसे अप्लाई करना है तो आप उसे ऑल द पेजेस सेलेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज बॉर्डर है वो सेट हो जाएगा एज स्पेसिफाइड। कॉलम फॉर्मेटिंग। यू मस्ट हैव सीन अ न्यूज़पेपर और your school magazine. How does the text appear in each articles? In newspapers, magazines, and in some of the books, the text appears in 2 or more columns. Word has the option to lay out some text or the entire document in columns. To lay out the text in columns, follow the given steps. Step 1. Select the text to lay out in columns. Step 2. Click on Layout tab. Step 3. Click on Columns commands in Page Setup group. Step 4. Select the numbers of columns from the drop-down menu. The selected text is layout in columns. तो बच्चों आप कॉलम्स को भी फॉर्मेट कर सकते हो। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में क्या होते हैं, एक ही पेज पे अलग अलग छोटे छोटे कॉलम्स में जो आपकी न्यूज़ है या जो आपका आर्टिकल है वो छपा हुआ होता है। तो ये फॉर्मेटिंग आप अपने टेक्स्ट में भी कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आप कॉलम्स में दर्शाना चाहते हो। उसके बाद आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। देन आप क्लिक करेंगे कॉलम्स कमांड पे इन पेज सेटअप ग्रुप। उसके बाद आप नंबर ऑफ कॉलम्स को सेट करेंगे। सपोज आपको 2 कॉलम्स में दिखाना है, 3 कॉलम्स में दिखाना है, तो आप वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को सेट करेंगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, उसके बाद जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है आपका कॉलम्स में दिखना शुरू हो जाएगा।
Paragraph formatting. Paragraph formatting is used to change the appearance of paragraphs. In paragraph formatting, you can make changes such as line and paragraph spacing, alignment, etc. Line spacing. Line spacing means the amount of vertical space between the lines of text. To change line spacing for a single paragraph, follow the given steps. Step 1. Select the paragraph or place the cursor in the paragraph whose line spacing is to be changed. Step 2. Click on line and paragraph spacing button in paragraph group of home tab. Step 3. Hover your mouse pointer on the various line spacing options. The paragraph will show the preview of the line spacing. Choose the line spacing you want. तो बच्चों अब हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो आप एक बार में तो नहीं लिख लेते, आप उसको पैराग्राफ्स में लिखते हैं। तो आप पैराग्राफ्स के अपीयरेंस को भी क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, पैराग्राफ की लाइंस को, उसमें कितनी स्पेसिंग देनी है, कितना अलाइनमेंट देना है, तो ये आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें हम सबसे पहले लाइन स्पेसिंग के बारे में जान लेते हैं। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है जितनी भी आपकी लाइंस होती है, जितने भी आपके सेंटेंस होते हैं, उन दो सेंटेंसेस के बीच में जो गैप होता है उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। अब आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको सबसे पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को उस पैराग्राफ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग डालना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद आप लाइन पे क्लिक करेंगे या पैराग्राफ स्पेसिंग बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इन पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब। उसके बाद अपने माउस पॉइंटर को आप वेरियस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो पैराग्राफ है वो आपका प्रीव्यू करेगा आपकी लाइन स्पेसिंग के साथ। आपको जितनी भी लाइन स्पेसिंग चाहिए आप उसे क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। More to know. By default in Word 2016, the line spacing is set to 1.15. Tech tip. Use Ctrl+1 to make single line spacing. Use Ctrl+2 to make double line spacing. Use Ctrl+5 to make 1.5 line spacing. ठीक है, ये लाइन स्पेसिंग आप माउस के साथ साथ अपने कीबोर्ड पे भी इन शॉर्टकट कीज को प्रेस करके कर सकते हैं। Paragraph spacing. Paragraph spacing is the amount of space above or below a paragraph. The spacing between paragraphs is measured in points. To change paragraph spacing, follow the given steps. Step 1. Select the paragraph before or after which you want to change the spacing. Step 2. Click on the paragraph dialog box launcher on the home tab. The paragraph dialog box will open. Step 3. Select the indents and spacing tab. Enter the required spacing in the before and after spin boxes under the spacing section. Click on OK. ठीक है, अब हम पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में जान लेते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग एक अमाउंट होता है जो आप अपने पैराग्राफ के बीच में चाहते हैं। ठीक है, जो स्पेस आप डालना चाहते हैं वो आप इसके थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू चेंज द स्पेसिंग। ठीक है, उसके बाद आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे ऑन होम टैब। आपके सामने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब को। ठीक है, उसके बाद जो रिक्वायर्ड स्पेसिंग है जो भी आप डालना चाहते हैं बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ वो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। इंडेंटिंग टेक्स्ट. इंडेंटेशन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट and the page margins. The indentation feature is used to move a complete paragraph or the first line of a paragraph to a specific position either from the left or right margin. The steps to change the indentation are as follows. Step 1. Select the text to be indented. Step 2. Click on the increase indent button in the paragraph group on the home tab. The selected text will shift half inch away from the left margin, or click on the decrease indent to move to the text half inch closer to the left margin. तो बच्चों हम टेक्स्ट इंडेंटिंग के बारे में जान लेते हैं। इंडेंटेशन जो होता है वो डिटरमाइन करता है आपके स्पेसिंग के अमाउंट को जो कि आपके टेक्स्ट एंड पेज मार्जिन्स के बीच में
होती है। इंडेंटेशन फीचर जो होता है वो किसी भी कंप्लीट पैराग्राफ को या किसी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, ठीक है। आप इसे लेफ्ट एंड राइट क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स के थ्रू जान लेते हैं। सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि आप इंडेंट करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे इंक्रीज इंडेंट बटन पे इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब, ठीक है। तो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा 1/2 इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, मूव हो जाए। टेक टिप, यूज Ctrl+M टू इंक्रीज द इंडेंट, यूज Ctrl+Shift+M टू डिक्रीज द इंडेंट, ठीक है। इंडेंट को आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे शॉर्टकट कीज को भी प्रेस करके कर सकते हैं चेंज। Working with tabs, the most common ways to indent the text is to use the tab key. It is used to move the cursor to certain spaces in a document. By default, tab stops are set at every 0.5 inches. You can set the tab stops along the ruler according to your requirement. When you press the tab key, the cursor automatically jumps to the next tab. Tabs can also be created using ladder lines. The ladders insert dot or dashes in the space leading up to the tab stop. To set the tab stop, follow the given steps. Step 1. Click on the paragraph dialog box launcher on the layout tab. Step 2. The paragraph dialog box will appear. Now click on the tabs button present on the lower left of the dialog box. The tabs dialog box will appear on the screen. Step 3. Type a tab position, for example 1.25 inch in the tab stop position text box. Step 4. Select any of the alignment options and click on the set button. Click on OK. Step 5. Press the tab key to jump the cursor to the next position where you have set the tab stop. तो बच्चों जब हम टैब्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये मोस्ट कॉमन वे होता है किसी भी टेक्स्ट को क्या करने का, इंडेंट करने का, ताकि हम टैब की को क्या कर सकें, यूज़ करके उसे चेंज कर सकें। ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कर्सर को सर्टेन स्पेसिस में क्या कर सकें, मूव कर सकें इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0.5 इंचेस के होते हैं, ठीक है। और हम इन्हें घटाया बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब हम टैब की को प्रेस करते हैं तो जो कर्सर होता है वो ऑटोमेटिकली जंप करता है टू द नेक्स्ट टैब, ठीक है। और ये जो टैब्स होते हैं ये क्रिएट किए जाते हैं लीडर लाइंस के थ्रू। अब ये कैसे होता है ये हम स्टेप्स के थ्रू जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। और ये कहाँ पे आपको दिखता है, ये लेआउट टैब पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपके सामने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जो है वो क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन द टैब्स बटन प्रेजेंट ऑन द लोअर लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स। उसके बाद जो टैब डायलॉग बॉक्स है वो आपकी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको टैब पोजीशन को क्या करना है, टाइप करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे 1.25 इंच को सेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जो नंबर है वो आपको टाइप करना पड़ेगा इन द टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे एनी ऑफ द अलाइनमेंट ऑप्शंस को। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेट बटन पे, देन उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप टैब की को प्रेस करेंगे टू जंप द कर्सर टू द नेक्स्ट पोजीशन, अगली पोजीशन में जाने के लिए जहाँ पे आपने अपना टैब स्टॉप जो था वो सेट किया था। More to know, you can quickly set tabs by using the tab selector button present on the left end of the ruler bar in a document. Keep on clicking the button until it displays the type of tab that you want to set. Then click on the location on the ruler bar where you want to set the tab. तो बच्चों आप टैब सेलेक्टर को यूज करके आप किसी भी टाइम अपने टैब्स को सेट कर सकते हैं क्विकली, ठीक है। आप अपने बटन को क्या करते रहेंगे, तब तक क्लिक करते रहेंगे जब तक कि आपका जो टैब का टाइप है वो सेलेक्ट या सेट नहीं हो जाता। उसके बाद आप लोकेशन पे क्लिक करेंगे ऑन द रूलर बार जहाँ पे आप अपनी टैब को सेट करना चाहते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।